Good morning, everyone. Good morning, teacher. Good morning. So, students, cash flow is going on, right? And we have discussed the operating activity. We know that there are three activities including in the cash flow: operating activity, investing activity, and financing activity. So, we have started doing operating activity and we have completed almost all the steps in that. The first, which was the first one? Net profit before tax and extraordinary. The second one, what we used to add? Plus non-cash and non-operating items, okay, and minus non-operating incomes. Then we used to deal with current assets and current liability, okay. I think you remember what to do. प्लस क्या करना है, प्लस DA वाला जो आपको सिखाया था वो वाला स्टेप है. एंड देन नेक्स्ट tax paid, and we deal with the extraordinary item, and finally we used to calculate cash flow from, nobody knows what we are doing, cash flow from operating activity. All right, now there are two important points which we have to deal in this operating activity. Till now in the question the depreciation was given. Do you remember, students? Yes, ma'am. Depreciation is your non-cash item and we used to add back. All right, do you remember this? Yes, ma'am. ध्यान है ना, depreciation को क्या करते थे, प्लस करते थे ना. तो there the depreciation was clearly given, but you can have the question where depreciation is not clearly mentioned and you have to find out the information. Okay, so how to find out the information, how to calculate that segment, that question we are going to do today. Okay, so I'm taking one illustration for this, and if you have done the depreciation wala chapter in 11th standard, so this will be very easy for you. Provision वाला method किया था depreciation में, ध्यान है आपको? किस किस को ध्यान है? 11th में हमने पढ़ा था depreciation वाला, assets account and provision for depreciation. So that's the same story. So let's talk about this illustration number 31. Those students who are staying at home, page number 5.34, illustration 31. Okay, so it's telling that calculate cash flow from operating activities from the following information. हासिम बेटा, बुक है आपके पास? बुक है, ये बहुत अच्छी बात है, बट आपको ध्यान से सुनना है एंड समझना है. ओके, सो वी हैव द इंफॉर्मेशन गिवन. These are the extract of the balance sheet they have given. Surplus, balance in statement of P&L. You have a opening balance and closing balance. Students, इसमें से opening balance जो दिया है and closing balance दिया है, these belongs to which year? Closing stock कौन से year से belong करता है? Closing balance is खत्म, यानी कि current year, and opening balance of the previous year. Okay, so you should be very clear with that. So we have the surplus. Excuse me, just quite, if you are not interested in studies, but quite. Okay, so surplus balance in statement. Closing balance हम निकालते कैसे हैं? The first information is what? Profit before tax and extraordinary items. How to calculate? Closing balance minus opening balance. Remember? Yes. Okay. So it's given 35,000 minus 30,000. So this comes 5,000. All right. What other thing we use to deal? Provisions and reserves if you have created. So in the illustration you can see journal reserve. Opening balance 10,000 and closing balance is 15,000 given. So how much this has increased? 5,000. Yakul beta, you should try to understand. Opening balance was 10,000 and closing one is 15,000. So how much it is increasing? 5,000. So we add this journal reserve. We must have created during the year and your profit has reduced because of this 5,000. So I have added back. Okay. So this 10,000 is my what? Profit before tax and extraordinary item. Alright, students? So I can start my question with 10,000. You have to prepare it in a proper format. Alright. So I can take it like this in the rough mode. Now further informations, provision for depreciation on plant is given, outstanding expenses. तो outstanding expenses क्या है आपका?
यू शुड बी क्लियर विद ऑल दिस पॉइंट्स, यू नो, फटाफट से क्लिक होना चाहिए। करेंट लायबिलिटी है गुडविल, गुडविल को हम डील करते हैं। अब देखिए गुडविल जब कम हो रही है तो क्या मतलब है इसका, व्हेन गुडविल इज डिक्रीजिंग दिस इज अमोर्टाइज्ड एंड वी शो इन द डेबिट ऑफ द P&L एंड वी हैव टू डील एट दिस स्टेज, ओके। बट यहाँ पे गुडविल क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो क्या है, आपने परचेज किया गुडविल एंड दिस विल बी योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ पे नहीं आएगी, ऑपरेटिंग में इसका कुछ नहीं करना है, ठीक है। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, टेक केयर, ध्यान दो, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। क्लोजिंग बैलेंस आपका 10,000 एंड ओपनिंग 20 है। सो एट दिस पॉइंट सी एज आई बिकेम केयरलेस सो वी कैन कमिट मिस्टेक, कि आपका ऊपर कौन सा ईयर दे रखा है, पहले स्टार्टिंग में आपको ओपनिंग दे रखा है फिर क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग में 10,000 है, डोंट गेट कंफ्यूज दोज हु आर एट होम, क्लोजिंग में 10,000 है एंड ओपनिंग में 20,000 है। तो ये बढ़ नहीं रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है। ऑलवेज यू हैव टू बी अलर्ट रिगार्डिंग द ईयर कि पहले कौन सा बैलेंस हमने ऊपर लिया है, ठीक है। सो हमारी पहले 20,000 थी ओपनिंग में 20 है एंड क्लोजिंग में 10 है, इसका मतलब 10,000 कम हो रही है, एमोर्टाइज्ड है, ठीक है। तो इसको आप प्लस करते हैं, ऑलराइट, प्लस गुडविल एमोर्टाइज्ड 10,000 आप प्लस करेंगे एंड देन वी हैव ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री, डेटर्स, ये सारा ये स्टेज बाद में है, ठीक है। अभी हमारी कौन सी स्टेज चल रही है, प्लस नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ठीक है। तो लिमिटेड आइटम्स आर गिवन है। तो यहाँ पे हमारा एक तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है विच वी विल बी लर्निंग एंड आउटस्टैंडिंग नहीं करना, अभी गुडविल का था हमने ले लिया। ट्रेड रिसीवेबल भी आपकी करंट असेट्स है, इसको भी डीए वाली उसमें स्टेज में करेंगे। नाउ आई हैव गिवन, they have given plant costing rupees 20,000 having book value of rupees 14,000 was sold for 18,000 during the year. Students pay attention please, अगर ये लाइन नहीं दे रखी होती, ये इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती तो वो प्रोविजन वाला हमारे लिए सफिशिएंट था, ठीक है। आप देख सकते हैं उसमें ओपनिंग बैलेंस 30,000 है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ओपनिंग बैलेंस 30 है और क्लोजिंग कितना है 35, तो कितना इंक्रीज हो रहा है 5,000 इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन हो जाता, कब हो जाता, इफ दिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है तो इसका मतलब ये 5,000 का डिफरेंस ही आपका डेप्रिसिएशन नहीं है, वी हैव टू वर्क ऑन दिस, ठीक है। तो इसके लिए आप 2 अकाउंट बनाएंगे, ओके। So let's prepare the account. It's visible here. First one is your assets account, यानी कि यहाँ पे ये plant account है, ठीक है। So we are taking the brief of this, और let me prepare it here. Plant account, and next one is your provision for depreciation account, okay. Students, assets का क्या बैलेंस होता है, assets are containing debit balance और credit balance, और liabilities and provisions, all the provisions are having credit balance, ठीक है। so assets का, yes please, अगर हम assets की बात करें तो how much plant is given, प्लांट का बैलेंस कितना दे रखा है आपको, एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, प्लांट कॉस्टिंग 20,000, ठीक है। तो प्लांट का हमारा ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, इट्स वेरी इजी, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन फीड करनी है, ठीक है। एंड देन प्रोविजंस कम ऑन द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट, आपको प्रोविजंस के ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे रखे हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस और प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो लेट्स रीच एट द क्रेडिट साइड ऑफ दिस, ये आपका डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट है एंड ये क्रेडिट है, ठीक है। तो प्रोविजंस के आप क्रेडिट में आ जाएंगे, यहाँ आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या है इसका, ओपनिंग बैलेंस इज गिवन 30,000, इज दैट ओके। हिमांशु इधर देखो बेटा, प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस होते हैं, ओपनिंग बैलेंस इधर आ गया एंड क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस
कैरिड डाउन, कितना दे रखा है 35,000, ठीक है, इंफॉर्मेशन फीड कर दी हमने। ओके, नाउ रिमेंबर वन रूल स्टूडेंट्स कि जिसका जो बैलेंस होता है, बेसिक बैलेंस होता है, कुछ बढ़ता है तो उधर ही बढ़ता है और कम होता है तो दूसरी तरफ। जैसे कि प्लांट है, प्लांट का बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है। अगर मैं और प्लांट खरीदती हूँ तो किधर आएगा, डेबिट में, और अगर प्लांट कम होती है, बेचते हैं, तो किधर आएगा, क्रेडिट में। ये याद है डेप्रिसिएशन में हमने ये सीखा था कि here the purchases, further purchases will come here, here you charge the depreciation, sales, and if profit comes on the sale of plant, that comes here and loss comes here. ये 5-6 आइटम में होते हैं, that's all, right? And in the same way provisions for depreciation, these are having the opening balances, ये आपका बैलेंस है। अगर कोई और डेप्रिसिएशन लगता है तो वो आपका इधर लगेगा, अगर इसमें से कुछ कम होता है तो वो इधर आएगा, और ये क्लोजिंग बैलेंस है। लेट मी रिमाइंड यू स्टूडेंट्स हाउ दिस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वर्क, यू माइट हैव फॉरगॉटन। दिस इज द मेथड वेयर यू डोंट चार्ज द डेप्रिसिएशन एनुअली on your assets. Okay, you don't disturb the assets account. You do what? You create one separate account and you keep depositing the depreciation in that account year after year. इस प्रोविजन वाले अकाउंट में आप हर साल डेप्रिसिएशन जमा कराते जाते हैं और ये जमा होता रहता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जमा होता जा रहा है। When we sell any assets or any part of the assets, so the related depreciation we reduce from this account. अब यहाँ पे आपने टोटल सब पे डेप्रिसिएशन लगा लिया। अब एक मशीन आपको बेचनी है, कोई असेट्स बेचनी है, तो उससे रिलेटेड अब यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन है आज तक का, इसमें से निकाल के उसका डेप्रिसिएशन इधर रख देंगे। इधर रखने का मतलब इस अकाउंट में से माइनस हो जाना, और वो आप यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो वो अकाउंट आप वो असेट्स आपकी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। I don't think you need to study. Tanu, paying attention? Okay. All right. This way this works. So simple formula, जिसको ये चीज़ें समझ नहीं आई वो एक चीज़ ध्यान से समझ लो। डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो इधर आएगा, किसी भी रीज़न से कम होगा तो इधर आएगा। असेट्स बढ़ेगी तो इधर आएगी किसी भी रीज़न से, और कम होएगी तो इधर आएगी। लॉस है तो कम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है तो ज़्यादा हो रही है, सेल हो रही है तो कम हो रही है, परचेज हो रही है तो इधर आ रही है, ठीक है। ऐसे ये डेप्रिसिएशन आज तक का है, स्टार्टिंग 1 अप्रैल। अब साल में और डेप्रिसिएशन लगेगा तो इधर लगेगा, लविश इधर साल में डेप्रिसिएशन लगेगा तो इधर लगेगा, और अगर आप बेच रहे हैं कोई असेट्स तो उसका डेप्रिसिएशन भी आप हटा देंगे तो वो इधर आके माइनस हो जाएगा। इज दैट ओके? सो दिस वे दिस वर्क्स। तो आई हैव जस्ट फेड द फार्मूला, आई मीन द इंफॉर्मेशन आई हैव फेडेड हियर। इंफॉर्मेशन हमने लिखी है। नाउ लास्ट लाइन, प्लांट कॉस्टिंग 20,000 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 14,000। दिस 14,000 इज बुक वैल्यू मीन्स रिटर्न डाउन वैल्यू, कि आज की डेट में इस प्लांट की कितनी वैल्यू बची हुई है आपके पास, 14,000 की है, एंड इट्स टेलिंग वाज सोल्ड फॉर 18,000। पे अटेंशन स्टूडेंट्स, दिस इज माय रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ माय प्लांट, एंड ये आपने 18,000 में बेच दी है, ठीक है। सेल कर दिया आपने 18,000 में, जबकि इसकी वैल्यू 14,000 थी। आपको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? 14,000 की चीज 18,000 में बेची है, फायदा है या नुकसान है? हाउ मच फायदा? एंड वेयर गोज द फायदा? दैट गोज हियर प्रॉफिट। लॉस होता है तो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो दिस इज माय सेल। सेल जब करते हैं तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट। परचेज करते हैं तब क्या एंट्री होती है, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश करते थे ना, या बैंक। अब सेल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट, सो बाय बैंक। ऑलराइट, हाउ मच, 18,000 आई एम रिसीविंग। 4,000 का फायदा है, गेन है, दैट गोज टू दिस डेबिट साइड, प्लांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट्स 4,000। ऑलराइट, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कैसे लगाऊं, मुझे ना तो कोई परसेंटेज दे रखी है, ना कोई टाइम पीरियड दे रखा है, नो अदर इंफॉर्मेशन आर देयर, ओके। सो वी हैव द हिंट्स ओवर देयर। अब इस प्लांट अकाउंट में वी डोंट हैव एनी अदर, यू नो, कोई हमने और परचेज भी नहीं की है, सेल हो गया, राइट, प्रॉफिट या लॉस हो गया, दैट्स ऑल। तो अब क्या बचता है, सिर्फ डेप्रिसिएशन बचता है। सो द बैलेंसिंग फिगर यू विल कैलकुलेट, this is your 24,000, so what comes as a balancing figure, 6,000, ठीक है।
समझ आया क्या किया हमने? जो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने फीड कर ली है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास मेन क्या चीज़ होती है कि कोई एसेट्स बेचते हैं वो होती है, और डेप्रिसिएशन होता है, और अगर लॉस है तो वो होता है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। लॉस है नहीं, प्रॉफिट है, वो मैंने इधर लिख दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, सब एक ही चीज़ मिसिंग है, क्या? डेप्रिसिएशन, कि इस प्लांट पे, पर्टिकुलर प्लांट पे, इस वाली पे आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा, 6000, और वो भी आप इसमें इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली दे रखा है। ये हमारा आ गया बैलेंसिंग फिगर, ये प्रूव हो गया, बट इसमें दे रखा है। इफ यू टेक केयर, क्या दिया है आपको? प्लांट कॉस्टिंग 20,000, बुक वैल्यू इज 14,000। जिसकी वैल्यू 20,000 है और बुक वैल्यू वो बोल रहा है, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू उसने दे दिया आज तक की 14,000, तो इस प्लांट पे आज तक का कितना डेप्रिसिएशन लगा है? 6,000। तो इस इंफॉर्मेशन से भी मिल गया है हमें, और कई बार ये इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है तो वी कैन फाइंड आउट एज अ बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये 6,000 क्या आ गया आपका? अब यहाँ पे आप सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम प्रोविजन वाला मेथड कर रहे हैं। अगर प्रोविजन वाला मेथड नहीं होता तो नॉर्मली हम डेप्रिसिएशन लिख सकते थे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप कहेंगे कि 20,000 और 14,000 दे रखा है तो 6,000 तो हम वैसे ही निकाल सकते थे वर्बली, तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है? आई टेल यू स्टूडेंट्स, ये 20,000 की एक प्लांट है जिसपे 6,000 का डेप्रिसिएशन हमें नज़र आ रहा है, लेकिन वी डोंट हैव ओनली सिंगल प्लांट इन द बिजनेस, वी हैव लॉट ऑफ अदर एसेट्स ऑल्सो। आप देख सकते हैं कि एक्यूमुलेटेड ही आपका, हेलो लुक हियर, एक्यूमुलेटेड ही आपका 30,000 ओपनिंग था एंड 35,000 आज की डेट में है। ये तो सिर्फ डेप्रिसिएशन है, तो सोचो असेट्स कितने की होगी, तो उन असेट्स में भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कि हम पूरे ब्लॉक, असेट्स के पूरे ब्लॉक पे डेप्रिसिएशन जो पूरे साल में लगता है वो हमें कैलकुलेट करना है, और वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। सिर्फ एक असेट्स का डेप्रिसिएशन यहाँ मेंशन नहीं करना है, सभी असेट्स का डेप्रिसिएशन निकाल के वो मेंशन करना है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन आई हैव टू प्रिपेयर दिस, ऑलराइट। अब क्या है, क्वेश्चन हो गया। इधर देखिए, इस एंट्री को कैसे रीड करेंगे? यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा है, इस एंट्री को कैसे रीड करेंगे आप? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, है ना ये? तो ये यहाँ पे प्रोविजन वाले अकाउंट में भी फीड करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। हाउ मच? 6,000, okay. Now we can complete this, we can find out the balancing figure. This is your 41,000 and this is your 11,000, okay. So this 11,000 is what? क्या है ये? ठीक है। Now this is the depreciation which I require and I will feed here, okay. अब इसका मैकेनिज्म समझ में आया? ध्यान से देखो, नहीं आया? नहीं आया? ये स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन था, जिनको नहीं आया वो देख लो। ये स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। तो ऐसा क्या जादू है कि आपने बेच भी दी है ना, और स्टार्टिंग में आपके पास इतना और ये बढ़ गया, तो इसका मतलब वो डेप्रिसिएशन लगा ही होगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में है, ये बचा हुआ है, इतना डेप्रिसिएशन आपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, इधर कम होने वाली जगह है ना। तो 11,000 साल में सारी जो मशीन्स का ब्लॉक है, असेट्स का ब्लॉक है, उसमें लगा है। 30,000 स्टार्टिंग में था, साल पे आई मीन ड्यूरिंग दिस ईयर 11,000 और डेप्रिसिएशन लग गया, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया आज तक की डेट का 41,000, ठीक है। तो बैलेंस 41 क्यों नहीं आया? क्योंकि एक असेट्स हम बेच रहे हैं और उस असेट्स पे आज तक का 6,000 डेप्रिसिएशन आपने इधर दिखा दिया, यानी इस अकाउंट में से आपने माइनस कर दिया। तो 41,000 में से 6,000 चला जाएगा तो कितना बच गया? 35,000। तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। इज दैट ओके? तो अब जो बची हुई असेट्स हैं उस पर टोटल 35,000 आपका डेप्रिसिएशन। समझ आ गया? Clear to everyone? All right. So we have calculated this 11,000. For this figure, we have to prepare these two accounts. Have you understood how to prepare? And students, side by we have completed our financial activities also. ये सारी ये वाली चीज़ आपकी जो हम करेंगे ना, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी यही चीज़ काम आने वाली है,
ध्यान से देखो क्या काम आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितने फ्लो होते हैं? 2, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो कब होता है? जल्दी बोलो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो कब होगा? जब आप असेट्स, कौन बोला परचेज नालायक, बेचेंगे। इधर देखो, जब आप परचेज करेंगे तो क्या होगा? आउटफ्लो, और सेल करेंगे तो होगा इनफ्लो। ठीक है, लुक हियर, प्लांट अकाउंट को देखो, यहां से इंफॉर्मेशन आएगी। ये क्या हो रहा है? सचिन, हिमांशु, इधर देखो बेटा, ये क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट। क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रही है? ये कैश जा रहा है, प्लांट। कितनी अच्छी बात है, 12th में पढ़ रहे हो। मैंने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट, कैश जा रहा है और प्लांट आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट, मनी इज कमिंग, या कुल पैसा आ रहा है, इनफ्लो है। आप प्लांट बेच रहे हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये क्या हो जाएगा? इनफ्लो हो जाएगा। कई बार आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, एंड हियर यू फाइंड वन अमाउंट जो कि क्या हो जाएगा? परचेज ऑफ द प्लांट, तो वो आपका आउटफ्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 ट्रांजेक्शन्स कैलकुलेट करने के लिए सेम चीज आपको कहाँ बनानी पड़ेगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अंडरस्टूड दैट? तो हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी एक पोर्शन कर लिया है। ओके, now we are back on the question. So this is, yes, it's your 21,000, this comes 31,000. now which portion we are doing? कौन सा सेगमेंट आ गया हमारा? ये प्लस माइनस वाला कंप्लीट हो गया, माइनस करने को कुछ नहीं है, प्लस डीए वाला आ गया। ठीक है, तो इस प्रॉफिट को आपने क्या बोला? दे डिडंट मेंशन देयर। नाउ यस, वन मोर पॉइंट, डीए से पहले एक और स्टेज है, हमने ध्यान नहीं दिया। कौन सी? वी हैव रब दैट, यस, हियर इट वाज 4,000, डू यू रिमेंबर? ये वाली चीज ध्यान है आपको? क्या था ये? फायदा, प्रॉफिट। दिस वाज गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट। डू यू अंडरस्टैंड दैट? गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट। तो ये इंफॉर्मेशन भी तो अपने को यहाँ पे चाहिए है। ये क्या, कौन सी गेन हो गई आपकी? नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे? माइनस गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, इट्स 4,000, आप माइनस कर देंगे। ठीक है, ऑलराइट। Now plus DA वाली situation. DA means decrease in current assets. So let's have a look only 2-3 transactions. Outstanding expenses and trade receivables, 2 items are there. तो ट्रेड रिसीवेबल आपके क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। पहले ओपनिंग बैलेंस था 40 एंड क्लोजिंग हो गया 35, तो 5,000 से कम हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने 5,000 प्लस कर दिया। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को देखिए। फर्स्ट इट वाज 5,000 एंड नाउ इट इज 3,000। ये क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे। ठीक है, हाउ मच दिस विल बी? डिफरेंस कितना है? 2,000। ठीक है, तो 2,000 आपका ये माइनस हो जाएगा। ओके, 5,000 प्लस and 2,000 आपका माइनस, it's 30,000. Is that clear? ये क्या आ गया? 30,000। क्या बोलेंगे इस आंसर को? किस किस को समझ आया? ओके, यस, one more and Yakul, still the class is going on. One more and very important, and the last one, last adjustment in the operating activity, that's very easy. You have to be very careful. Provision for income tax. Yes, regarding income tax, your all the doubts will be cleared now.
if you pay attention, provision for income tax. Suppose this is the extract of your balance sheet 2019 and 2020. Provision for tax, it's 10,000 and 15,000. ठीक है? Okay. So once again, yes, those who are staying at home, students pay attention. 19 and 20, it's previous year, it is current year. It's given provision for tax. So how to deal with this situation? We have studied when we calculate profit before tax and extraordinary item. So we plus this kind of provisions. तो कौन सा provision हम वहाँ पे plus करते हैं? आप दोनों अगर नहीं ध्यान देंगे नहीं समझ में आएगा. प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा आप प्लस करते हैं स्टार्टिंग में? कौन सा करते हैं? करेंट ईयर वाला. ये करेंट ईयर में आपने क्रिएट किया है तो दिस विल बी एडेड हियर. ओके. एंड ऑटोमेटिकली when other information is not given, no other information is given, so it is presumed that the previous year's provision you must have paid during the year. तो ये 10,000 will be the tax paid, जो आप लास्ट में क्वेश्चन करके लाते हैं ना ऑपरेटिंग वाला, और सेकेंड लास्ट पोजीशन आपकी यहाँ पे आप माइनस टैक्स पेड करते हैं, तो ये 10,000 आप वहाँ पे पे कर देंगे अगर सिर्फ ये दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है. ओके. बट इफ दे हैव प्रोवाइडेड यू वन मोर इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए आपको यहाँ दे दिया है मुझे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 5,000, ये इन्फॉर्मेशन साथ में दे दी है. ठीक है. तो आप क्या करेंगे? यस प्लीज. टैक्स पेड 5,000 आपको दे दिया है तो ऑफ कोर्स टैक्स पेड तो ये हो ही जाएगा आपका. ठीक है कि आपने ये वाला टैक्स पे किया है. बट यू हैव टू प्रिपेयर provision for tax account, right? And what comes here? You have to mention the balances. ये आपका opening balance है. Provisions के credit में होते हैं opening balance. By balance brought down 10,000 and this is balance carried down. Closing आपका 15,000. ठीक है. Balances आपने लिख दिए. ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये आपकी क्रेडिट की तरफ है. बेसिक इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ है. अगर कोई टैक्स बढ़ता है तो इधर आएगा और अगर कम होता है तो इधर आएगा. आप मुझे बताएं टैक्स पेड इज गिवन 5,000, टैक्स बढ़ेगा या कम होगा? टैक्स पे करने से बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाएगा. ठीक है. तो प्रोविजन फॉर टैक्स टू टैक्स पेड यानी टू कैश, या कैश भी नहीं होगा आपका, बैंक होगा. एंड ब्रैकेट में टैक्स पेड 5,000. ठीक है. ओके. सो दिस इज योर 20,000. एंड जैसे डेप्रिसिएशन वाले में हमने किया था कि साल के बीच में कि उसको तो पढ़ लेने दो कि साल के बीच में कितना डेप्रिसिएशन लगा है, तो वो इस तरफ हमने कैलकुलेट किया था 11,000. ठीक है. सो इन द सेम वे नाउ हाउ मच प्रोविजन यू हैव क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर, that the balancing figure is 10,000. ठीक है. Provision made during the year. तो इस केस में आप ये 10,000 वाला लेंगे. ये आपका क्लोजिंग. अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि प्रोविजन फॉर टैक्स से क्लोजिंग 15,000 क्यों दिखाया हुआ है? इसका मतलब मैंने साल में 15 बनाया नहीं, आपने 10,000 बनाया था. राइट. प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर इज 10,000. ये वाला आप वहाँ प्लस करेंगे. ठीक है. इसका मतलब है कि आपका टैक्स अभी 5,000 अनपेड है जो कि इसमें इंक्लूडेड है. राइट स्टूडेंट्स. सो दैट्स ऑल इन दीज एक्टिविटीज. लाइक ऑपरेटिंग का हमारा पूरा हो गया है एंड टुमारो वी विल बी कंप्लीटिंग आवर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग बोथ द एक्टिविटीज. ओके. एंड वन मोर डे वी विल बी टेकिंग टू कंप्लीट वन क्वेश्चन. Thank you. So take care and try to do the maximum questions of your operating activity, illustrations and back questions as well. Thank you.